Okay, Assalamu alaikum students. So let's get started with October November 2023 IGCSE Physics Paper 2 Variant 3. This is a 45 minutes paper. This is also an MCQ paper. So let's get started with it. Okay. How many of the quantities are scalar? Okay, so we have to identify scalar quantities. Beta, mass is a scalar quantity. Momentum is a vector quantity. We leave that. Density is a scalar quantity. And energy is also a scalar quantity. So we basically have three scalar quantities. The answer turns out to be C. Perfect. A train is on a straight track. Okay. The graph shows how a quantity y varies with time. Okay. So this is a quantity y that is varying with time. Which statements can be true? कौन से statements true हो सकते हैं? The train is stationary and y represents the distance from the last station. Yeah, this is possible. देखो, if your train is stationary and let's suppose this y is your distance ka axis, the distance would not change. If your train is stationary है, अगर आपका train stationary है, then your y axis or your distance ka axis will remain constant like this. There will be no distance covered. Yeah, that could be the possible description for that. ठीक है. द ट्रेन इज मूविंग एंड वाई इज द डिस्टेंस नो. जब भी ट्रेन मूव करेगी तो आपका अगर ये वाई डिस्टेंस वाला एक्सेस होगा तो ये इंक्रीज करेगा. ठीक है. इफ योर ट्रेन इज मूविंग द डिस्टेंस शुड ऑल्सो इंक्रीज. द ट्रेन इज स्टेशनरी एंड वाई रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन. नो, द ट्रेन इज मूविंग एंड वाई रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन. दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल. बेटा एक और वेरिएशन भी हो सकता है. दैट वाई इज योर स्पीड and the train is moving. It is moving with a constant speed of 10 meters per second. बिल्कुल फोर भी हो सकता है. देखो दो सिनेरियोज हो सकते हैं. या तो ट्रेन स्टेशनरी है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस. या तो ये हो सकता है ट्रेन मूव कर रही है and this is a speed time graph. The y-axis now becomes speed and you are moving at a constant speed 10 meters per second or whatever you want to label. 1 and 4 can be correct. 2 का answer is B. Let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows a speed time graph for a moving object. Always remember gradient of speed time graph is equals to acceleration. Which description of the object's motion is correct? Object के motion की कौन सी description correct है? Can you realize the gradient of this speed time graph? The gradient of this speed time graph is positive and decreasing. This is a decreasing curve. बेटा ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? एक डिक्रीजिंग कर्व है. डिक्रीजिंग कर्व का ग्रेडियंट पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग होता है. दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन इज व्हाट? Positive and decreasing as well. A is your answer to 3. You have a decreasing acceleration. 4 पे आ जाओ. The mass of air hitting the blades of a wind turbine is 1.5 into 10 is the power of 4. The speed of air is this, the density of air is this. Which row gives the volume of air hitting the blades each second and the kinetic energy of the air hitting the blades each second? अच्छा जी, वॉल्यूम निकालना है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. हाउ विल यू डू दैट? वेरी इजी. डेंसिटी is equals to mass over volume. Do you all remember that? Density किसके इक्वल है? मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है? 1.2. अच्छा जी, वॉल्यूम हमने निकालना है, मास के बिना. यस, 1.5 10 is the power of 4. Can you calculate the volume beta? Yes. Volume comes out to be what? 1.5 10 is the power of 4 divided by 1.2. निकालो वॉल्यूम क्या आता है. 1.5 10 is the power of 4 divided by 1.2. Your volume comes out to be 12,500 meter cube. Your volume comes out to be what? 12,500 meter cube. इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 13,000 मीटर क्यूब. तो ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट हो गए. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकालेंगे? 1/2 इंटू द मास. मास क्या है? 1.5 10 is the power of 4.
ठीक है, इनटू द वेलोसिटी या द स्पीड ऑफ एयर, दैट इज 4 का स्क्वायर। कैन यू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी निकालो बेटा, क्या आता है? दिस कम्स आउट टू बी 120,000 जूल्स। बी इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स नीडेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट? A force acts away from the center of the circle? No. A force in the direction of motion? No. A force acts towards the center. हमेशा जब भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है, देर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सी इज योर आंसर। क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। Okay, so let's read this question out. A uniform rod rests on a pivot at its center. The rod is not attached to the pivot. Forces are then applied to the rod in four different ways. The weight of the rod can be ignored. Which diagram shows the rod in equilibrium? अच्छा जी, कौन सी rod equilibrium में है? For equilibrium you have two conditions. Resultant force should be equal to zero. Resultant moment should be equal to zero. बेटा अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, व्हाट डज दिस मीन? रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब होता है? द अप फोर्सेस शुड बी इक्वल टू द डाउन फोर्सेस, द राइट फोर्सेस शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट फोर्सेस। और रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होने का क्या मतलब है बेटा? रिजल्टेंट मोमेंट जीरो का मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, so let's start with option D because that's the most easiest to disprove. यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनवर्ड फोर्सेस कितनी है? 100 प्लस 100 दैट इज 200 न्यूटन। अपवर्ड फोर्सेस कितनी है? 100 न्यूटन। दिस इजीली गेट्स डिस्प्रूव्ड क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। परफेक्ट। अब ऑप्शन सी को देखो बेटा। अपवर्ड डायरेक्शन में यू हैव 100 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू हैव 100 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स इज बैलेंस्ड। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास 100 न्यूटन है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू हैव 100 न्यूटन। द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बट व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट मोमेंट? इफ यू रियलाइज दिस 100 न्यूटन फोर्स विल टर्न यू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 100 न्यूटन फोर्स भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगी। इफ यू रियलाइज देयर इज ओनली क्लॉकवाइज मोमेंट, no anti-clockwise movement, the resultant movement is not equal to zero. Option C भी cancel out हो जाएगा। Now in between option A and B there is a tough fight, and before moving on to option A or B, I want you guys to write a short key point. लिखो बेटा, pivot slash hinges always generate reaction forces. पिवट स्लैश हिंजेस हमेशा रिएक्शन फोर्सेस जनरेट करते हैं। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एक और छोटा सा की पॉइंट लिख लो। समटाइम्स, या यू कैन से समटाइम्स दीज रिएक्शन फोर्सेस बैलेंस आउट द द forces in opposite directions. Just sit back, relax. I will let you know what I mean by these two key points. Whenever you have a pivot, it will cause a reaction force like this, like this. हमेशा reaction force occur करेगी from the pivot. Always, always remember that. ठीक है. Now let's analyze option B. Option B में can you realize we have only forces in the upward direction, 100 plus 100 plus the reaction force. The total upward force becomes 200 plus R. This is your upward force. डाउनवर्ड फोर्स आपके पास जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो।
बी भी आपने कैंसिल आउट कर दिया, द रिमेनिंग आंसर इज ए। बट सर ए आपका आंसर कैसे है? जस्ट लिसन केयरफुली। सर ए आपका आंसर कैसे है? जस्ट लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इफ यू रियलाइज in option A you have a downward force of what? 100 plus 100, that is equals to 200 Newton. बेटा upward direction में you have the reaction force. कभी कभार ऐसा होता है when your reaction force is in the opposite direction to the other forces, it balances out. It balances out all the forces. सुन लो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए में यू हैड टू डाउनवर्ड फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन, कंबाइंड यू हैड 200 न्यूटन। दिस 200 न्यूटन गेट्स बैलेंस्ड आउट बाय व्हाट? This 200 Newton gets balanced out by the reaction forces of the pivots or the hinge. ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या हो गई फ्रॉम द पिवट? सेम एज द डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज 200 न्यूटन। ऑप्शन ए इज बैलेंस्ड आउट, ए इज योर आंसर। ठीक है। कभी कभार बेटा पिवट्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखो, दिस इज 100% थिंग कि पिवट्स और हिंजेस ऑलवेज रिएक्शन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स अपवर्ड्स। परफेक्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि रिएक्शन फोर्स आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स को बैलेंस आउट कर देती है, लाइक इन ऑप्शन ए यू हैड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, दिस गेट्स बैलेंस्ड आउट बाय द रिएक्शन फोर्स दैट इज आल्सो इक्वल टू 200 न्यूटन। ए इज योर आंसर। लेट्स फर्दर मूव अहेड, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। अ कार ऑफ मास 1200 kg is traveling along a straight horizontal road. What is the impulse needed to accelerate the car from 5 to 10? अच्छा जी, impulse निकालना है। What is the formula of impulse? Impulse is equal to change in momentum, mass into change in velocity. Mass क्या है भाई? 1200. Final velocity क्या है? 10. Initial velocity क्या है? 5. Your impulse comes out to be 1200 into 5, that is 6000 Newton second. A is your answer. Let's further move ahead. अच्छा जी, a mass bounces up and down on a steel spring. The diagram shows the mass and the spring at different points during the motion. At which point is the least energy in gravitational potential energy store? बेटा जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा, जहां पे हाइट लोएस्ट होगी, योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी लोएस्ट देयर। ठीक है, जहां पे हाइट लोएस्ट होगी वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी। ए और बी ऑप्शन कैंसिल आउट। एट विच पॉइंट इज द मोस्ट एनर्जी इन द इलास्टिक स्टोर ऑफ द स्प्रिंग? बेटा आपकी स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी हाईएस्ट होगी, यहाँ पे लिख लो, द ग्रेटर द एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, the greater the greater the elastic potential energy, EPE। आपकी स्प्रिंग की जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। आउट ऑफ ऑल द डायग्राम्स कैन यू सी दिस डायग्राम में आपका स्प्रिंग सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड है। In this diagram, you have the greatest elastic potential energy. So the elastic potential energy is also the highest at the lowest point. D is your answer. A boy uses a rope to pull an object of mass m up a slope. अच्छा जी, ये आपका बॉय आ गया। ठीक है, he is pulling an object up. Let's say this is a rope, this is your object. ठीक है, the object has a mass m. Perfect. The rope is parallel to the slope. Perfect. The tension in the rope is equal and constant to the value of f. अच्छा जी, टेंशन f है। ओके। द ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ d। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट को आपने डिस्टेंस ऑफ d मूव करा दिया। परफेक्ट। अलोंग द स्लोप एंड राइजेस थ्रू अ हाइट ऑफ h। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट h राइज कर रहा है और डिस्टेंस d मूव कर रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय? वेरी इजी। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
एफ डी ए इज योर आंसर। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ बेटा। माइक्रोवेव ओवन इज रेटेड एट 900 वॉट्स। 900 वॉट्स का मतलब क्या है? अगर आपकी पावर 900 वॉट्स है, इसका मतलब क्या है? पावर की डेफिनेशन क्या होती थी? एनर्जी पर यूनिट टाइम। 900 वॉट्स का मतलब ये है यू आर कंज्यूमिंग 900 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, माइक्रोवेव क्या कर रहा है? 900 जूल्स प्रोवाइड कर रहा है पर सेकेंड। ए इज योर आंसर। An object is immersed in a liquid of density rho. The pressure at this depth due to the liquid is P. The gravitational field strength is G. What is the equation for the depth h of the object beneath the surface? क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। कैन यू आइसोलेट एच? यस। प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी इज इक्वल टू एच। एनी आंसर लाइक दैट? सी इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। A sealed bottle of constant volume contains air. The air in the bottle is heated by the sun. That means air का temperature क्या कर रहा है बेटा? Increase. If the temperature of air increases, the velocity of particles also increases. Okay. What is the effect on average speed? Average speed तो increase करेगी, A और B cancel out. What happens to the average distance between air particles? Can you realize? You are maintaining a constant volume. Constant volume maintain कर रहे हो तो distance between the air particles stays the same. D is your answer. आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन 13 पे। In an experiment, okay, so we are performing an experiment to investigate the relationship between the volume of a sample of air and its pressure. The volume of the sample is decreased and its pressure is measured continuously. ठीक है, आप प्रेशर मेजर कर रहे हो कंटिन्यूसली और आप वॉल्यूम डिक्रीज करते जा रहे हो। कर्व एक्स ऑन द ग्राफ शोज द रिजल्ट दैट वुड बी एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये कर्व एक्स क्या है? आपकी एक्सपेक्टेशन है, कह सकते हो थ्योरेटिकल रिजल्ट है। दिस इज योर थ्योरेटिकल रिजल्ट। परफेक्ट। कर्व वाई शोज द रिजल्ट दैट आर ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। वाई क्या है भाई? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है। एक्स क्या है? थ्योरेटिकल रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वाई क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो आपके रिजल्ट्स आए हैं। Which row shows two possible reasons? Okay, you have to say two possible reasons why curve y is different from curve x. आपने बताना है curve y different क्यों है from curve x. First of all, can you realize curve y is shifted towards the left side? Curve y जो है वो left side पे shift हुआ हुआ है। Sir, what does this mean? एक की पॉइंट लिख लो यहाँ पे। एक की पॉइंट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, शायद जिंदगी आसान हो जाए तुम्हारी। Let's say pressure P is on the y-axis, volume meter cube is on the x-axis. This is your graph. If you increase the temperature, बच्चे अगर आप temperature को increase करते हो, your curve will shift towards the right. अगर आप temperature को increase करते हो, your curve will shift towards the right. अगर आप temperature को decrease करते हो बेटा, your curve will shift towards the left. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो आपका कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। हेयर यू कैन रियलाइज आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो या टेम्परेचर हैज डिक्रीज्ड, दैट्स व्हाई द कर्व हैज शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऑप्शन ए और बी कैंसिल आउट। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व अगर आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, यू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, यू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज द कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, व्हाट एल्स इज हैपनिंग? दिस आइदर सी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। व्हाट एल्स इज हैपनिंग? कैन यू रियलाइज फॉर द सेम प्रेशर, लेट्स से अ प्रेशर ऑफ 10, आपका वॉल्यूम इन एक्सपेरिमेंट इज लेस कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम। तो क्या हो सकता है? एयर लीक्स आउट ऑफ द कंटेनर। डी इज योर आंसर। बेटा फॉर द सेम प्रेशर आपका जो एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम आ रहा है वो कम आ रहा है। इट इज पॉसिबल के एयर लीक्स हो रहे हैं। डी इज योर आंसर। अ स्टूडेंट स्प्लैशेस वाटर ऑन टू हर फेस।
Here are three statements about the effects. Water uses energy to evaporate. This is correct. The water gains energy from the student. This is correct. The face of the student cools. ये भी correct है. P, Q, R, all options are unfortunately correct. हमने तीनों को ही select करना पड़ेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Four containers each contain water. More water at the same temperature is added to each container. अच्छा जी. अब हर कंटेनर में वाटर ऐड कर रहे हो इस तरह. Like this, like this, like this. Perfect. From which container does water now evaporate more slowly than it did before? बेटा किस कंटेनर से वाटर जो है वो मोर स्लोली इवेपोरेट करेगा कंपेयर टू हाउ इट डिड बिफोर. अगर आप देखो तो ऑप्शन ए और डी तो आप फौरन से कैंसिल आउट कर दोगे, बिकॉज ऑप्शन ए और डी में आपका सरफेस एरिया इज रिमेनिंग सेम. ठीक है, ऑप्शन ए और डी में आपका सरफेस एरिया इज रिमेनिंग सेम, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन विल रिमेन सेम. देखो यहाँ पे जो आपका सरफेस एरिया है वो सेम रह रहा है ऑप्शन ए और डी में, ये चीज़, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी सेम रहेगी. ऑप्शन बी में इफ यू रियलाइज आपका सरफेस एरिया पहले ये पिंक था, नाउ योर सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड. सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ये हो गया ब्लैक वाली चीज़ हो गई. तो अगर एरिया इंक्रीज हो गया है तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. हाउएवर इन ऑप्शन सी देखो क्या हो रहा है. ऑप्शन सी में आपका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है. सरफेस एरिया हैज डिक्रीज्ड, एरिया हैज डिक्रीज्ड, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. द वाटर विल इवेपोरेट मोर स्लोली. सी इज योर आंसर. यहाँ पे आ जाओ. अ कबर्ड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ हीटर. ठीक है. एयर कैन मूव थ्रू अ गैप अंडर द कबर्ड. अच्छा जी, यहाँ से एयर मूव कर सकती है. ठीक है. विच रो डिस्क्राइब्स द टेम्परेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द एयर इन द गैप. देखो ये वाली एयर क्या है, डाउन साइड पे है, बॉटम साइड पे. ऑलवेज रिमेंबर कूलर एयर इज ऑन द बॉटम साइड. ऑप्शन सी एंड डी कैंसिल आउट. एंड दिस कूलर एयर विल बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द हीटर. पी इज योर आंसर. अब आ जाओ यहाँ पे. Light diffracts when it enters a telescope. This causes the image to blur slightly. Okay. The amount of diffraction depends on two factors, that is the diameter of hole and the wavelength of light. अच्छा जी, amount of diffraction दो factors पे depend कर रही है बेटा, diameter of the hole and wavelength of the light. Which combination for diameter and wavelength will result in the sharpest image? दो key points लिख लो. The smaller the gap size, the smaller the gap size, the larger the diffraction. बेटा जितना आपका गैप साइज स्मॉलर होगा उतनी डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी. यहां पे हमें क्या चाहिए, शार्पेस्ट इमेज चाहिए, लीस्ट ब्लरिंग चाहिए, लीस्ट डिफ्रैक्शन चाहिए. इफ यू वांट लीस्ट डिफ्रैक्शन योर गैप साइज शुड बी लार्ज, क्योंकि अगर गैप साइज स्मॉल हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन लार्ज हो जाएगी, ब्लरिंग ज़्यादा हो जाएगी. हमें चाहिए लार्जेस्ट गैप साइज सो दैट लीस्ट डिफ्रैक्शन अकर्स. तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सी और डी कैंसिल आउट, ए और बी में से कोई होगा. एक और की पॉइंट लिख लो. द लार्जर द वेवलेंथ, द लार्जर द वेवलेंथ, द लार्जर द डिफ्रैक्शन. जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी. हमने तो डिफ्रैक्शन कम करानी है. इफ यू वांट कम डिफ्रैक्शन योर वेवलेंथ शुड बी शॉर्ट. बी इज योर आंसर. लेट्स मूव अहेड. What is amplitude? What is wavelength? Amplitude is the distance from the mean position to the maximum position. P is your answer. What is wavelength? Distance covered during one wave, crest to crest जो distance cover हो रहा है, that is your wavelength. S is your wavelength. P is your amplitude. B is your answer. आगे बढ़ जाते हैं. The diagram shows, अच्छा जी diagram show कर रही है, effect of a prism on white light. Perfect. Some light is reflected on striking the prism and some is refracted and dispersed to form a spectrum. ठीक है.
वाइट लाइट हिट कर रही है प्रिज्म पे, इट इज डिस्पर्सिंग या breaking into smaller components. What happens if monochromatic light is used instead of white light? First of all, तो monochromatic का मतलब समझो. Monochromatic light is light of single frequency. Monochromatic light क्या है? Light of single frequency. बेटा जब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे हिट करेगी तो वो डिस्पर्स थोड़ी होगी. वाइट लाइट हैज मेनी कंपोनेंट्स, उसके अंदर बहुत कंपोनेंट्स या बहुत डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट होती है. जब वो हिट करती है प्रिज्म को तो वो स्प्रेड आउट हो जाती है. बट इफ यू हैव अ लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो डिस्पर्शन. टी इज योर आंसर. आगे बढ़ जाते हैं. द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर. परफेक्ट. लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल लाइक दिस. ठीक है. द एंगल बिटवीन द रे एंड द मिरर इज दिस. The ray is reflected by the mirror. What is the angle of reflection? Okay, let's calculate the angle of reflection. First of all, angle of incidence निकाल लेते हैं. What will be this angle of incidence? This entire thing is 90 degree. 90 is equals to 35 plus I. Angle of incidence क्या आ जाएगा? 90 minus 35, that is 55 degrees. बेटा अब हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का एंगल क्या आ गया? 55 डिग्री. बी इज योर आंसर. सिंपल. 21 पे आ जाओ. A thin converging lens in a camera produces a real image on a photosensitive surface as shown. At which position is the image of the top of the object formed? बेटा कहाँ पे image form होगी? Always remember, whenever you have to form an image, there are two rays. First ray is passing through the optical center like this. Second ray क्या करती है? Parallel to the principal axis, hitting the converging lens, passing through the focal point. जहां पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं, दैट गिव्स यू योर इमेज. सी इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर. इट स्ट्राइक्स अ ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री. ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी. The refractive index is 1.4. You have to calculate the angle of refraction. Angle of refraction किस तरह आएगा? N is equals to sin I over sin R. बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? Let's make sin R the subject is equals to sine of 45 divided by 1.4. एक सेकेंड करते हैं ज़रा इसको. Sine of 45 divided by 1.4 sine inverse. Your refracted angle comes out to be 30 degrees. B is your answer to 22. आगे बढ़ते हैं. स्पीड ऑफ साउंड इन कॉपर. कॉपर इज अ सॉलिड. सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट होता है. लिक्विड में सेकंड हाईएस्ट होता है या मीडियम होता है. या दैट्स आल्सो करेक्ट. एयर में या गैस में सबसे कम होती है साउंड की स्पीड. 23 का आंसर इज ए. दैट्स करेक्ट. आगे बढ़ते बेटा. लेट्स मूव अहेड. विच मेटल कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? कौन सा मेटल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है? जिंक नहीं, लेड नहीं, आयरन. यस. लेट्स मूव अहेड. What is the direction of electron flow? Always remember, electrons flow from the negative terminal to the positive terminal. नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस तरफ. परफेक्ट. एंड व्हाट इज ओके व्हाट इज दिस डायरेक्शन? ये कौन सी डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑप्शन सी एंड डी कैंसिल आउट. विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय द एमीटर? Charge passing each point in the circuit per unit time. Charge divided by time, that is current, will be measured by the ammeter. A is your answer. 26 पे आ जाओ. Which substances both contain large concentrations of free electrons? बेटा किस substance में large concentration of free electrons है? We are looking for two मेटल्स. हमेशा याद रखो मेटल्स में लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. हम दो मेटल्स लुक फॉर कर रहे हैं. एल्युमिनियम मेटल है, ग्लास नहीं है. कॉपर मेटल है, वाटर नहीं है. कॉपर मेटल है, नायलॉन नहीं है. सिल्वर भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल है. डी इज योर आंसर. परफेक्ट. अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ एल
melts and has to be replaced with a wire of same material and same resistance. अच्छा जी, आपको same resistance चाहिए. The only wire available has twice the diameter. What is the length of this wire? बेटा, आपको सेम रेजिस्टेंस का वायर चाहिए, बट द ओनली वायर अवेलेबल हैज ट्वाइस द डायमीटर. अब आपको एक इक्वेशन याद है बच्चा, एक इक्वेशन याद है, एरिया इज इक्वल टू पाई ओवर 4d². डायामीटर में जो भी चेंज होगा उसका स्क्वायर इफेक्ट एरिया पे आएगा. इफ द डायामीटर इज डबलिंग, व्हाट विल हैपन टू योर एरिया? एरिया विल बिकम 4 टाइम्स. अब बेटा, अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया है तो रेजिस्टेंस को क्या होगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया है, रेजिस्टेंस विल गेट डिवाइडेड बाय 4. आर से 1/4 आर चले जाओगे आप. परफेक्ट. बट बेटा, आपने तो सेम रेजिस्टेंस ऑफ आर मेंटेन करनी थी. Now, if you want to go from 1/4R to the same resistance of R, you want an increment by a factor of 4. कैसे करेंगे? We know resistance is directly proportional to length. अगर लेंथ आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी तो आपकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स हो जाएगी. तो यू नीड अ लेंथ ऑफ वायर दैट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ. डी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. A teacher wishes to show production of electrostatic charge. She holds a rod and rubs it with a cotton cloth. A copper rod, glass rod, plastic rod, and a steel rod are available. Which two rods must be suitable to use? हमेशा याद रखो, whenever you are generating electrostatic charges, you are looking for insulators. आप insulators की तलाश में हो. कॉपर इंसुलेटर नहीं है, कैंसिल आउट. ग्लास एंड प्लास्टिक दोनों इंसुलेटर है. बी इज योर आंसर. Let's further move ahead. Two resistors with R1 and R2 are used as potential divider. What is the relationship between R1 and R2 and potential difference V1 and V2? बेटा याद रखो, अगर दो रजिस्टर सीरीज में हैं तो उनके दरमियान फ्लो करने वाला करंट विल बी सेम. The current passing through R2 and the current passing through R1 will be same. Can you make two equations? दो equations बना सकते हो जी सर. V1 is equals to current I into R1. V1 over R1 is equals to current I. इसकी भी equation बना लो. V2 is equals to I R2. V2 divided by R2 is equals to I. This is your second equation. This is your first equation. ये first equation आ गई, second equation आ गई, दोनों को equate कर दो. V1 R1 is equals to V2 R2. You can further आप इसको manipulate कर सकते हो बेटा. किस तरह? आप इसको किस तरह rearrange कर सकते हो? थोड़ा सा देखो, V2 को नीचे ले आओ, R1 को ऊपर ले जाओ. V1 over V2 is equals to R1 over R2. सर आपने क्या किया? V2 को नीचे ले आया, R1 को ऊपर ले गया. Any equation like this? D is your answer. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's move on to question 30. The diagram shows, अच्छा जी diagram show कर रही है हमें, a light dependent resistor LDR connected in a potential divider circuit. The brightness of the light falling on the LDR is increased. अच्छा जी, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ LDR will decrease. Which row shows what happens to the resistance of the LDR? What happens to the reading of the voltmeter? बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द LDR तो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी. दैट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द LDR डिक्रीजेज. दैट मीन्स द वोल्टमीटर की रीडिंग विल ऑल्सो डिक्रीज. तो ऐसा कोई ऑप्शन है. ए इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30. आगे बढ़ते हैं बेटा. आई थिंक ओनली 10 आर लेफ्ट. चलो. A simple AC generator has a coil rotating in a magnetic field. What happens to the peak electromotive force and to the frequency of the AC output when the coil is rotated faster?
बेटा क्या होगा अगर कॉइल को हम फास्टर रोटेट करना शुरू कर दें? पीक ईएमएफ विल बिकम ग्रेटर, फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर हो जाएगी। ए इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दिस। A current passes along a wire placed between the poles of a permanent magnet. The wire experiences a force due to the magnetic field. What will change the direction of this force? क्या चीज डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देगी? Reversing the direction of current. B is your answer. What is a transformer used for? Changing a direct current into an alternating current? No. Changing the magnitude of an alternating voltage? Yes, B is the correct answer. Transformer हमेशा magnitude of alternating voltage को change करने के लिए use होता है। आगे बढ़ते हैं। The scattering of alpha particle by a thin gold foil provides the evidence for the nuclear model of an atom. Two alpha particles of the same energy are incident on the nucleus of a gold. Which diagram shows the correct path followed by the alpha particles as they pass close to the nucleus? अच्छा जी, कौन से पार्टिकल्स का पाथ सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल बी और डी को कैंसिल कर दो। अल्फा पार्टिकल्स नेवर कर्ल्ड। बेटा अल्फा पार्टिकल्स कभी भी कर्ल नहीं करते अराउंड द न्यूक्लियस जैसे ये हो रहा है। तो ऑप्शन ए या सी में से कोई आंसर होगा। नाउ इफ यू हम्बली रियलाइज हो क्या रहा है, अगर आप थोड़ा सा रियलाइज करो हो क्या रहा है, ऑप्शन ए सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, बोथ ऑफ देम विल रिपेल। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब है, द अल्फा पार्टिकल दैट इज नियर टू द न्यूक्लियस इज रिपेलिंग मोर कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज्यादा दूर है, फार अवे है, वो कम रिपेल कर रहा है। बेटा ये तो सेंस बनाती है, अगर दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के नियर हैं, करीब हैं, तो वो ज़्यादा रिपेल करेंगे कंपेयर टू टू लाइक चार्जेस दैट आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो थोड़ा सा कम रिपेल करेंगे। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो बी क्यों नहीं है? बी में जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब है वो कम रिपेल कर रहा है। दिस अल्फा पार्टिकल दैट इज नियर टू द न्यूक्लियस इज रिपेलिंग लेस कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो ज़्यादा रिपेल कर रहा है। दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल। The half-life of carbon is 5,700 years. Okay. An object containing carbon-14 has a count of 100 counts per minute when it is first formed. The graph shows how the count rate decreases over time. Explain which point on the graph corresponds to a time of 11,400 years after the formation of the object. ठीक है भाई। देखो बेटा इनिशियली आपके काउंट्स क्या है? 100। आफ्टर वन हाफ लाइफ दैट इज 5,700 ईयर्स, काउंट रेट हाफ हो जाएगा। आफ्टर अनदर हाफ लाइफ काउंट रेट फर्दर हाफ हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेट्स मार्क दिस स्केल। दिस इज 0, 25, 50, 75। तो 11,400 ईयर्स के बाद दैट इज 5,700, 5,700 को प्लस करो क्या होता है? After 11,400 years, what will your count rate be? 25. 25 corresponds to option D. D is your answer. आगे बढ़ते हैं। Why are beta particles deflected more strongly than alpha particles when they enter an electric field? Because beta particles have less mass. 37 पे आ जाओ। Which statement describes how nuclear energy is released by fission in a nuclear power station? Heavy nuclei split into lighter nuclei. This is the process of fission जिससे एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा जी, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेट्स सी। द डायग्राम शोज अ स्टार एस एंड द इनिशियल अरेंजमेंट ऑफ थ्री प्लैनेट्स एक्स वाई जी। अच्छा जी, एक स्टार है एस और ये इनिशियल अरेंजमेंट है ऑफ थ्री प्लैनेट्स एक्स वाई जी। ईच planet orbits clockwise in a circle about s. Okay. The time for one orbit of y is three times the टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कर दूं तो ये होगा कि लेट से एक्स को 1 ईयर लगता है टू ऑर्बिट द स्टार एस, वाई को 3 टाइम्स लगता है ऑफ 1 ईयर, दैट इज 3 ईयर्स। द टाइम फॉर वन ऑर्बिट ऑफ जेड इज टुवाइस द टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट ऑफ वाई। अच्छा जी, जेड का क्या है? टुवाइस ऑफ वाई है,
तो जेड को 6 साल लगते हैं एक पूरा ऑर्बिट परफॉर्म करने में। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। एक्स को 1 ईयर लगता है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड स्टार एस। वाई को 3 साल लगते हैं टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड स्टार एस, और जेड को 6 साल लगते हैं टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड स्टार एस। Starting from the initial arrangement, we are starting from this arrangement. Which diagram shows the position of the planet after X has made one complete orbit? मतलब 1 साल के बाद क्या positions होंगी सारे stars की? First of all, if X has performed one complete orbit, X वापस अपनी जगह पे आ जाएगा उधर ही. Perfect. What will happen to Y? बेटा आप अगर देखो तो y जो है 3 years में कंप्लीट रोटेशन कर रहा था 360 डिग्रीज की। तो 1 ईयर में कितनी रोटेशन करेगा x? x कम्स आउट टू बी व्हाट? रेशियो मेथड लगाओ, 360 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 120 डिग्रीज। तो y कितनी रोटेशन करेगा? 120 डिग्रीज की। मे बी y इज समवेयर हियर। ऑप्शन सी, डी, कैंसिल आउट। अब z को देख लो इसी तरह। बेटा z जो है वो 6 साल में 360 डिग्री रोटेट करने वाला था। तो 1 ईयर में कितनी रोटेशन परफॉर्म करेगा z? 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे समवेयर। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस सवाल को करने का आसान तरीका यही था कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड कर देते। लेट्स फर्दर मूव अहेड। द नियरेस्ट स्टार टू द सन इज अबाउट 4 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, जो सन से नियरेस्ट स्टार है वो 4 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द सन। इसका मतलब क्या होगा? A student makes three statement about the star. Light from the star takes 4 years to reach the earth. This is perfectly correct. बेटा अगर कोई स्टार अर्थ से 4 लाइट ईयर्स दूर है, इसका मतलब क्या है? लाइट फ्रॉम द स्टार टेक्स 4 years टू रीच द अर्थ। ये बिल्कुल करेक्ट है। Light from the sun takes about 4 years to travel to the star. Now we cannot tell that. The star is outside our galaxy. We can also not tell that. C is your answer. What is the formula of orbital speed? Orbital speed का formula बेटा क्या होता है? 2 pi r over your time period t. B is your answer. If you have any further questions, you can ask in the comments below.